Okay, so should we start? Richard? Let's just wait 2 more minutes. A few people have texted me, they're still joining, so Oh, okay. it's like 2 minutes. Gurname, someone is asking in the chat that can they use any other online terminals? Okay, Archit replied. Yeah, sure. Anything you can find online terminal. There's no hard and fast rule. But I hope most of you have installed Linux. If Chalo. you can answer in the yeah, Rachel. No, I was just saying that we can get started now. Okay, like I was only asking that if how many of you have installed Linux already? You can just If you let us know can. in the chat. Write +1 if you have and -1 if you haven't. Just that. And they took your -1 very seriously. नहीं वरना स्पैम हो जाता ना like installing not installed. Okay, So I so guess most of most you of the haven't. people have not. Okay, chill. Okay, so what we can do is अभी online terminal पे कर लेते हैं and at the end of the session we एक बार can हम अर्चित tell हम एक them. बार स्टेप्स बता देते हैं सारे, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक हाँ है गुना तो में बता रहा है I guess I think he हाँ said. ठीक है, क्योंकि वो फाइल बहुत बड़ी होती है तो इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगी, तो एक बार स्टेप्स बता देते हैं, उसके आगे ऑनलाइन टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। Okay. ओके Okay, you can say. Okay, so one second. So is my screen visible? Yes, it's visible. And just one second. Janmiji, I hope you started recording. Just a reminder. Because, because a lot of people have asked for the recording. Thanks. Okay, you can get started now. All right, so first I'm gonna demonstrate how to basically download Linux. So Ubuntu is one of the major distros of Linux. I'm sure you'll just be fine with downloading Ubuntu, and it's widely used. It has a great support. So just go onto the link and go to the download link. Uh, Now Ubuntu desktop, and this is the latest version 20.04.1 LTS. And if you do not have a powerful computer, I would recommend Linux Mint, which is basically a lighter version of Linux, but they both have the same terminal, so it doesn't really make any difference. Just that it's a bit more, and for Windows users also, it will be a lot more familiar because the GUI in this is a lot like Windows. So if when you download Ubuntu, you can go to, there's a free tool called Rufus, and because I'm on Linux, so I would not be able to run this tool. So for Windows users, you can download this tool. I'll paste this link in the chat. And when you download this tool, just select here your ISO file which you have downloaded from here, and then just select your pen drive or flash drive or CD if you are old fashioned. So just select that and start. Just don't change any settings. System should be FAT32, and you will get a bootable Linux bootable drive. So after that, when you have to restart your computer, you have two options. Either you can wipe clean your computer, or you can
side by side install Windows and Linux. When you have to side by side install Windows and Linux, there's a thing that you'll have to do is make some unallocated space in Windows. So I'll show you how to do that. I'm not on Windows. If anyone is having any doubt till now, you can ask us or ask in the chat window. Because like installation is the first step, and like you should be clear about it. Yeah, so I think I'll not be able to show you, but I can dictate you. So basically you have to go to this disk management in Windows, and after going at disk management, I'll show you an image. Disk management. So yeah, so basically when you go here, you'll see your basic disk 0, disk 1. So you can decide if you have an SSD or an HDD where you have to install your Linux, and you can create a partition. Just right click on any of those disks. Suppose don't use system reserved. Just like for example, if you want to create a partition for C drive, just right click on it and click on shrink. Then it will ask you for how much, how much size you have to shrink the windows and that particular partition, and you'll shrink by, I'd recommend around at least 30 to 40 GB for Linux. But if you are you don't have much space, it will also work in 25, but not less than that. So just shrink your disk, and then you'll get unallocated space. So when you will now plug in your pen drive and reboot your computer. Now every computer has a different boot menu. So for example, for Dell, I think it's F12, and for Asus, I think it's escape key. Just Google it for whatever your गुन्ना में manufacturer. गुन्ना में Yeah, थोड़ा स्लोली बोल ले बहुत तेज हो रहा है हाँ ओके okay. So I'll repeat. So अब जैसे आप लोगों ने अपना सी ड्राइव श्रिंक कर लिया, उसके बाद अनएलोकेटेड स्पेस बन जाएगी आपके उसमें विंडोज में। तो विंडोज में अनएलोकेटेड स्पेस बेसिकली हमें वहीं पे लिनक्स इंस्टॉल करना है, बिकॉज लिनक्स और विंडोज का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए हम सेम फाइल स्ट्रक्चर में उन दोनों को इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्पेस अनएलोकेटेड करी है। तो अब नाउ आपने जो बूटेबल आईओएस बनाया, आईएसओ बनाया है रूफस की हेल्प से, उसको आप अपने पीसी में प्लग इन करो और रीबूट करना, और हर बूट मेन्यू में जाना, बूट फ्रॉम पेन ड्राइव। हर मैन्युफैक्चरर का जो पीसी होता है उसको अलग अलग कीज उन्होंने डिफाइन कर रखी होती हैं। डेल का मुझे पता है F12 होता है, अजूस का एस्केप होता है, बाकी आप लोग गूगल कर लेना। और आप बूट मेन्यू में जाके बूट फ्रॉम पेन ड्राइव कर लेना, आपका पूरा जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन यस 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 क्लिक कर देना। देन मेन आपकी वो आएगी, डुअल बूट का एक स्क्रीन आएगा कि आपको ऑप्शन आएगा आपको क्या करना है उसमें। 1 सेकेंड। या सो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा आपको 20.04 में। तो इस ऑप्शन में इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विंडोज 10 में आपका जो बेसिकली आपने अनएलोकेटेड स्पेस अलॉट करी है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको पूरी ड्राइव डिलीट करके इंस्टॉल करनी है उबुंटू, तो आप इरेज डिस्क इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको थोड़े और कुछ साइज में चेंजेस करने हैं वगैरह तो समथिंग एल्स, बट वो मैं अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, प्लीज डोंट डू दैट। So when you have installed Ubuntu alongside Windows 10, then it will be just yes 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 and simple installation procedure. Set your username and all that. गन में एक बार अभी रुक जा, एक बार उनसे पूछ कि अभी वो लोग कौन से स्टेप पे हो, लाइक इफ यू कैन टेल अस कि एट व्हिच स्टेप यू आर राइट नाउ। I Yeah, think first thing is how Priyanshu, many if your C drive is almost full, yes, you can install Linux in any drive. C how drive is many not. of you are installing Linux side by side?
I mean, if you people are, हाँ then we'll go a little more step by step. अगर आप already कर चुके हो या अभी सिर्फ सीखना चाहते हो कैसे करना है, then we can adjust accordingly. I'm doing it ओके side by हाँ side, तो so you please explain it once more because it's very difficult to catch up. ओके Okay, so what व्हाट आई step एम are you सेइंग on? सी ड्राइव में मत करना, सी ड्राइव में मत करना प्लीज, क्योंकि अगर सी ड्राइव पे कर दिया तो तुम्हारी विंडोज उड़ जाएगी और बाद में तब तुम बोलोगे विंडोज नहीं है यहाँ पे। नहीं, सी तो ड्राइव को तुम श्रिंक कर सकते हो, हाँ बट सी वो बोल ड्राइव, रहा हूँ, पहले अनएलोकेट करना फिर उसके बाद करना, डोंट डायरेक्टली मत कर देना। हाँ अभी आप दिशा आप कौन से बोल रहा स्टेप पे हो अभी? सर मैंने अभी लाइनक्स अभी खोला ही था जस्ट, तो फिर वो मेरा मिस हो गया। ओके अरे मतलब डाउनलोड अभी कर रखा है आप लोगों ने आईएसओ की नहीं? ओ सर, ओके, सो आई एक थिंक बार कि फिर हम ऐसा करते हैं, एक बार हम इसका पूरे का ओवरव्यू दे देते हैं। जो अभी हमने किया है वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे, बट फॉर द सेशन वी विल बी आल्सो यूजिंग एन ऑनलाइन टर्मिनल ओनली। इज दैट ओके? क्योंकि उसके साथ इंस्टॉलेशन के साथ बहुत टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो we will be sharing all the steps of installation, but after that we will also be using the online terminal only, which you can also use. Okay. Yeah, Okay, because sir. the thing is that installation itself is a long step and it'll take a lot of time, and with all the doubts coming in, the session is going to get really lengthy and we won't be able to cover the main points. So I think it's best कि आप लोग एक बार ही समझ लो, and if you have like any queries, then you can, you know, you reach out to any of us, and so off the session we'll be able to help you out. अभी just एक overview ले लो, and for the terminal तो सब online ही है, so not to worry. ऑलराइट, सो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब आप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अपना टाइम जोन एंड यू नो आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, तो देन आप जब रीबूट करोगे तो ग्रब स्क्रीन करके एक आता है। अगर ये नहीं आए तो आपने कोई स्टेप मिस किया है या फिर आपने अपनी विंडोज उड़ा दी है, बट ऐसे करके ग्रब स्क्रीन करके ऑप्शन आएगा कि आपको उबुंटू चाहिए, एडवांस ऑप्शन फॉर उबुंटू, इसमें एक विंडोज का भी ऑप्शन होगा, मोर लाइक दिस या सो ऐसे करके ग्रब स्क्रीन आएगा एक, और इसमें आपके सारे ओएसएस लिस्ट हो जाएंगे। So if you have done, if this is coming on your boot up screen, then you have done everything right, and then you can log into Ubuntu. So I guess now we'll start with the presentation. हाँ गन्नू में अब एक बार आप स्टार्ट कर लेते हैं। these installation step you can see later also, like रिकॉर्डिंग जो होगी उसके अंदर भी आप देख सकते हो, और यहाँ तो अगर किसी को डाउट आता है तो you can ask us, okay? And Also I'll also send a YouTube video for all of you, you know, you who have to dual boot. It's a very good video, so you can follow it. अभी किसी को डाउट है तो एक बार अभी पूछ लो, or should we move ahead also? only चलो एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। हम्म सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर अभी, तो सर अच्छा, अभी हमने इंस्टॉलेशन के स्टेप भी हमने किए थे, ये हम दोबारा शेयर कर देंगे, ठीक है? अभी हम ऑनलाइन टर्मिनल ही खोल सकते हैं। गन्नू में ऑनलाइन टर्मिनल खोल ले जिसके अंदर सारे प्रैक्टिस कर पाए। Sorry to interrupt you guys in between. For all the participants in the audience, just take care of one thing. अगर तुमने late join किया है, not to worry, we'll be sharing the recording of the session later on. And in fact, अगर कोई additional resources हैं, जैसे YouTube video links या कोई भी documentation के link या कुछ भी, we will share that also with you. So don't worry about that. Another thing is that we have around 40 people now, so it is recommended कि आप लोग unmute करके questions ना पूछो and try to ask us in the chat. We'll try to answer. There's Archit, Kshitij, Gurname and I, so कोई ना कोई will answer your questions. So let's stick to this procedure आगे के लिए. All right, so Okay, so like first of all we would like to ask you that what do you think is Linux? Like from anyone in the chat box, or you can write in the chat box, you can tell us also कि what do you think is Linux? Yeah. So like, yeah, it is an operating system
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और लाइक और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पता है तुम लोगों को? ओके, बढ़िया। गुन्नू में नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so तो बेसिकली अब आपको पता तो चल गया लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? सो लिनक्स टॉवर्ड्स ही वाज द वन हु हैज डेवलप्ड लिनक्स, बट लाइक लिनक्स इज बेसिकली इट इज कम्युनिटी ड्रिवन। लाइक लिनक्स टॉवर्ड्स उसने डेवलप किया था, उसके बाद से लिनक्स इज द वन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज कम्युनिटी ड्रिवन। लाइक डू यू नो द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? इफ यू कैन टेल अस द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। Yeah, anyone can edit. Basically, गुन्नू में नेक्स्ट स्लाइड कर। हाँ, ये तो लाइक बेसिकली लिनक्स क्या है कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर यू आर गिवन द ऑल द एक्सेस। जैसे यू नॉट नीड, लाइक विंडोज में तुम लोग देखोगे कि तुम्हें इधर कई चीज़ों का पूछना पड़ता है, कभी कुछ और पूछना पड़ता है, बट लिनक्स इज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम which can give you all the access as a developer and as a user also. So if you are a developer and you want to know the in and outs of everything, Linux is the best operating system to use. गुन्नू में कुछ ऐड करना हो कर ले। okay, so कर लेते हैं। So basically Linus Torvalds, basically पहले जो होता था GNU, एक था रिचर्ड स्टॉलमैन नाम का बंदा था, वो फ्री सॉफ्टवेयर का एडवोकेट था। तो बेसिकली पहले जो कंपनीज थी एवरीथिंग वाज प्रोप्राइटरी, मतलब तुम्हारा एक पेंट से लेके और कोई भी, आजकल तो सारे इतने सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, बट एवरीथिंग वाज प्रोप्राइटरी। तुमने एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा है तो वो भी प्रोप्राइटरी है। सो अगर सपोज अगर तुम एक डेवलपर हो और तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें कुछ सीखना है, तो बेसिकली तुम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इलीगल। सो तुम कैसे सीखोगे? सो रिचर्ड स्टॉलमैन क्रिएटेड GNU, which is a recursive name. GNU is not Unix. Unix is basically एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है which basically was developed by AT&T, which is a big company. तो उन्होंने डेवलप किया था so that लोग मल्टी प्रोसेसर्स का यूज कर पाए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो फिर उसके बाद GNU आगे बढ़ता गया एंड लाइनस टॉरवेल्ड्स दिस मैन, इसने 1991 में कर्नल यूज किया ना। व्हाट इज अ कर्नल? ही बिल्ड अ कर्नल। बेसिकली कर्नल क्या करता है, कंप्यूटर के जो हमारे रिसोर्सेज जो हैं उसको एलोकेट करता है एंड इट टेल्स द हार्डवेयर कि उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। इट इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स जस्ट लाइक अ लेयर ओवर द हार्डवेयर। सो इसने वो 1991 में क्रिएट किया एंड थ्रू आउट उसके बाद आज तक वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता है ये बंदा, ये बस लाइनक्स ही डेवलप करता है एंड ही हैज लाइनक्स की सबसे सिस्टमैटिक अपडेट्स होती हैं। सो अब बात करते हैं लिनक्स डिस्ट्रोज की। सो डिस्ट्रोज क्या होते हैं? बेसिकली लाइनक्स का कर्नल सेम है, सारे डिस्ट्रोज में तुम्हें टर्मिनल सेम मिलेगा, बट तुम्हें क्या होगा कि अलग अलग डिस्ट्रोज में अलग अलग ग्राफिकल इंटरफेस, और जैसे हर डिस्ट्रो हर चीज के लिए वो है। जैसे तुमने काली लिनक्स सुना होगा, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर हैकिंग, क्योंकि उसमें बेसिकली हैकिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। डेबियन है, वो थोड़े एडवांस, जो डेबियन और आर्च लिनक्स यूज करते हैं वो थोड़े एडवांस डेवलपर्स यूज करते हैं। लिनक्स मिंट थोड़ा सा ज़्यादा उसका GUI अच्छा है, और उबुंटू मेजरली यूज्ड है एटलीस्ट हमारे इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड लोग मतलब स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा उबुंटू यूज़ करते हैं। सो तुम भी अपना डिस्ट्रो बना सकते हो अगर तुम्हें आगे जाके इस चीज़ पे इंटरेस्ट है तो बेसिकली कर्नल उठाना, उस पर GUI बनाना, उसके टूल्स बनाना। सो नेक्स्ट कि नाउ व्हाई शुड यू केयर अबाउट लिनक्स? सो लिनक्स में बेसिकली क्या है कि एवरीवन राइट नाउ इज
developing on Linux. तुम्हारे 90 around 60-70% of the servers on the world, even Microsoft के 60% servers Linux पे रन करते हैं. तो उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है कि तुम और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो. मतलब iOS भी लोग बहुत यूज करते हैं, मैकिंटोश, बट मैकिंटोश का भी जो टर्मिनल है वो लिनक्स वाला आ जाता है, उसमें भी यूनिक्स का ही टर्मिनल है. सो बेसिकली अगर तुम्हारे पास iOS है तो तुम्हें उबुंटू की जरूरत नहीं है. सो बेसिक और क्या है कि इट इज़ इजीली अपग्रेडेबल. फिर सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि इट इज़ फ्री. सो हर कोई इस पे अपनी एप्स डेवलप कर सकता है. और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन लिनक्स. तुम्हारा सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस, कितने बिलियंस ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं. एंड लास्टली कि जो तुम्हारे जिस भी डोमेन में तुम जाना जाओगे, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट, उन सब के टूल्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं लिनक्स पे. सो एज अ स्टूडेंट तुम्हें मतलब अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर तुम्हें सीखना है या फिर कोई चीज़ सीखने के लिए. और आगे तुमने जहाँ भी काम करना होगा, तो चाहे बैकएंड पे करोगे चाहे फ्रंट एंड पे, एवरीबडी विल एक्सपेक्ट कि तुम्हें एटलीस्ट टर्मिनल की बेसिक कमांड्स वगैरह तो आती होंगी. क्षितिज कुछ ऐड करना हो तो. नहीं, आई थिंक दिस इज इनफ. अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके. सो तुम्हें मतलब सबको आइडिया तो हो गया ना लिनक्स है क्या, लाइक व्हाई वी आर यूजिंग लिनक्स इंस्टेड ऑफ. ओके. ऑल राइट. सो अब एक बेसिक आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तुम्हें बोरिंग लग सकता है, हाउएवर जिनको इंटरेस्ट हो उनके लिए एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ. सो बेसिकली हार्डवेयर है हमारा, उसके ऊपर आ गया हमारा कर्नल. कर्नल इज बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारे टास्क और शेड्यूलिंग करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है. उसके ऊपर आ गया हमारा शेल. शेल में एक लैंग्वेज यूज होती है बैश, जिसपे हम अभी लिखेंगे और बेसिकली जिसमें सारी कमांड्स लिखी जाती हैं. तो शेल तुम्हारे कर्नल को बताता है कि तुम क्या करना चाहते हो बेसिकली. फिर उसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस तो तुम्हें पता ही है क्या होती हैं. सो जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो गए तुम्हारा, और कोई भी कमांड, तुम्हारी एप्लीकेशंस इतनी सारी होती हैं. और फिर इसका आ जाता है यूजर. तो बेसिकली लिनक्स का जो सेलिंग पॉइंट है कि इट इज मल्टी यूजर ओरिएंटेड. जैसे विंडोज में भी आप मल्टीपल यूजर कर सकते हो, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि लिनक्स होता है. सो अगर आप सपोज इसमें आप अलग अलग यूजर बना सकते हो, यूजर के ग्रुप्स बना सकते हो, तो बेसिकली इट्स वेरी गुड फॉर नेटवर्किंग. और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि इट वाज बिल्ट फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो वो उन्होंने इनिशियली ही यही सोचा था कि हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग का ध्यान रखना है, ताकि कि कोई भी चीज लीक ना हो सके या फिर कोई एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा ना एक्सेस कर सके. सो अब क्षितिज, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, आई थिंक दिस इज मच ओके फॉर द थ्योरी. अभी किसी को लाइक कोई कंफ्यूजन है कि कर्नल क्या होता है? आप बता दो हमें एक बार. कर्नल और शेल में डिफरेंस क्या होगा? सो बेसिकली तुम्हारा जो कर्नल है ना, इट इज शेल इज कि तुम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज शेल. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें सपोज ये कंप्यूटर को तुम एलियन मान लो, और एक लैंग्वेज है शेल. शेल एक टूल है, उसके ऊपर एक लैंग्वेज लिखी जाती है बैश. बैश स्क्रिप्ट बोलते हैं. तो बैश स्क्रिप्ट के थ्रू तुम उस एलियन को एक्सप्लेन करोगे कि तुम कहना क्या चाहते हो, और वो फिर तुम्हारा काम करके देगा. ओके. हाँ, तो सिंपल वे में बताएं, लिनक्स जो तुम बोल रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कर्नल है एक तरह से, कि जहाँ पर तुम जो मतलब तुम्हारे हार्डवेयर को बता रहे क्या करना है. शेल क्या है कि तुम जो लिख रहे हो वो कर्नल को कैसे समझ आएगा, वो शेल के थ्रू आएगा. तो ये मेन डिफरेंस है कर्नल और शेल में. समझ आया इससे? वैसे गुड वे था एलियन वाला, नाइस, आई लाइक दैट. ओके. सो अब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. लिनक्स इंस्टॉलेशन आई थिंक हमने काफी डिस्कस कर लिया है, सो इसे स्किप कर देते हैं.
तो अब आ जाते हैं लिनक्स कमांड्स पे। आई होप कि आप लोगों ने वेब टर्मिनल्स, जैसे मैं ये वेबिनल यूज करूंगा आज के सेशन के लिए। एक बार ये बता दो, साइट एक बार लिंक पे वो डाल दिया ना तूने? हाँ मैंने डाल दिया था। एक बार ये बता दो, आप लोगों ने ये साइट खोल ली और ऐसा कुछ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? if everyone can respond to कि if you have opened the webinar. वेबिनार या कोई और भी अगर कराओ। कोई और भी वेबिनार की लाइक सीधा साइट ही है, तो आई थिंक दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। नहीं हाँ कोई मतलब बोल रहा था बस ना एक जरूरी है। हाँ टर्मिनल है देख खुला लो, हुआ, बस यही कोई जानना है। कोई भी टर्मिनल हो, चाहे तुम मैक ओएस पे हो तो अपना वही हाँ, टर्मिनल मैक खोल लो। ओएस पे हो तो तुम्हारा जो अपना टर्मिनल एप्लीकेशन होती है वही खोल लो सीधा। एप्लीकेशन में जाके टर्मिनल सर्च करो, खुल जाएगा। सर किस में नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो किसके, आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक है इस वक्त तो। मैक है। मैक में एक एप्लीकेशन होती है टर्मिनल, ओके तो उसको खोलो, उसमें आ जाएगा। वो ही होती है बेसिकली, मैक के लिए लिनक्स टर्मिनल ही है। ओके ओके। कमांड लाइन होती है, कुछ ऐसा ही आएगा। आया आपके पास सौरभ? नो सर अभी, हाँ हाँ खुल गया। खुल गया? हाँ खुल गया। और भी एक बार बता दो कि लाइक यू ओपन, इफ यू हैव अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने ये खोल लिया, टर्मिनल खोल लिया होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो एक वेबिनल खोल लो, इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड लिनक्स। ओके, तो गुन में स्टार्ट कर लो। ओके सो मैंने कुछ फाइल्स एक्चुअली इस सेशन के लिए अपने पीसी पे बना रखी थी। सो तुम लोग वेबिनल, वैसे वेबिनल पे भी सेम रन करेंगी फाइल्स, बट मैंने कुछ एक्चुअली एक आध फाइल्स इस सेशन के लिए स्पेशली, तो मैं अपना खुद का टर्मिनल यूज करूंगा। बट वेबिनल भी सेम ही वर्क करेगा, सेम ही कमांड्स वर्क करेंगी। सो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके। सो बेसिक कमांड्स आ जाती हैं। सो सबसे पहले हमारी कमांड है मैन। सो मैन इज लाइक तुम्हारी सबसे ज्यादा काम आएगी। इट इज, मैन इज शॉर्ट फॉर मैनुअल। सो कोई भी कमांड अगर तुम्हें नहीं पता हो, उसके आगे मैन लिख के एंटर दबा दो, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे PWD के बारे में नहीं पता, आई जस्ट सिंपली राइट, एक सेकेंड, आई राइट मैन PWD एंड इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आएगी। इट प्रिंट्स। अभी हम तुम्हें बताते हैं पीडब्ल्यू एग्जैक्टली क्या है। एक बार ये कमांड लिख के देखो सारे, मैन पीडब्ल्यू डी, और एक बार हमें चैट विंडो में बताओ कि लाइक इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट। ओके श्योर। ओके ओके, गुन में चल। ओके ऑल राइट। सो बेसिकली अब तुमने देख लो, इसमें जैसे आ रहा है कि तुम्हारा नेम आ रहा है, पहले ये बता रहा है कि व्हाट इट डज, फिर इसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, लॉजिकल, फिजिकल, डायरेक्टरी, मतलब सारे तो मुझे भी नहीं पता। बट जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, तुम अगर कोई सी वगैरह तुमने करी हो, तो जैसे हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, वैसे इसके अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं आगे आगे। जैसे अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक कमांड के लिए हेल्प चाहिए, तो अगर तुम जैसे डालोगे मैन हेल्प, तो ये आ गए, इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए कि तुम ये कर सकते हो। इसके आगे ऐसे ये हाइफन सी लगा के, तो कॉन्फ़िग फाइल का यूज, दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल डीबग करने के लिए वगैरह वगैरह। सो कोई भी कमांड तुम्हें नहीं पता हो, उसके आगे मैन टाइप करो एंड यू विल गेट द दैट कमांड। ओके सो नेक्स्ट आर कमांड इज PWD। पीडब्ल्यू, उसमें आप बता दो। हाँ एक बार आपको पीडब्ल्यू नाम सुन के लाइक क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, अगर इफ यू नो एनीथिंग अबाउट लिनक्स?
तो PW चल गन्ना में आगे चलते हैं। PW इज बेसिकली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो अभी लाइक यू कैन सी दैट, हाँ, D is basically directly, W is working, and P is present. So अभी you can see that Gurname is currently working in his own directory only. So when he writes PWD, तो उसका पाथ आ जाता है कि कौन सी करंट डायरेक्टरी में काम कर रहा है वो। हाँ, तो तुम इसको अपने अगर जिनके पास है तो वो भी वैसे कर सकते हैं, जैसे मेरा अपना टर्मिनल है, इसमें भी /home/ करना में। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज डायरेक्टरी एंड ls। तो एक बार पहले एक्चुअली क्षितिज आई थिंक कि फाइल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ये बेटर समझ आएंगे हाँ कमांड। ठीक, राइट, एब्सोल्युटली। या सो तुमने देखा होगा ये तुम्हारा बेसिक विंडोज का फाइल सिस्टम है। तुम्हारी ड्राइव्स होती हैं अलग अलग, और उसमें सी ड्राइव में बेसिकली तुम्हारा ओएस होता है, और बाकी तुम फाइल्स स्टोर करते हो। ये विंडोज का हायरार्की सिस्टम होता है, और ये पैरेलल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा हायरार्की नहीं होती विंडोज में, काफ़ी चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। और जो ये हमारे लिनक्स का, तुमने बेसिकली कभी एंड्रॉयड में अपने उसमें गए हो फाइल मैनेजर में, तो उसमें जो होती हैं हर एक चीज़ के अंदर एक चीज़ होती है। जैसे कि सपोज एक ट्री, अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स तो चलो कहाँ पढ़े होंगे नहीं, अभी। डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़े होंगे अभी, ऐसे बताओ। हाँ, बट इट इज फॉर्मिंग लाइक, देखो जैसे ये तुम्हारी रूट होगी और इसकी ये ब्रांचेस हैं, तो इट इज लाइक ए ट्री। मतलब कंप्यूटर में ट्री इसे ही बोलते हैं। सो बेसिकली ये इसमें हायरार्कल चीजें बहुत होती हैं। सो एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल। उस फाइल की होती है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के ऊपर एक और डायरेक्टरी होगी, और उन डायरेक्टरीज का सबका मतलब जो ओनर है दैट इज रूट। मतलब बेसिकली द इसकी, पेरेंट ओनली। या द पेरेंट इज रूट। सो अगर तुमने अभी लिनक्स इंस्टॉल कर रखी है, तो तुम अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो तुम ऐसे फाइल्स में जाके और अदर लोकेशंस में अपने कंप्यूटर पे क्लिक करके ये सारी डायरेक्टरीज देख सकते हो जो इसमें लिस्ट की गई हैं। ओके, और मैकओएस में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी डायरेक्टरीज होती हैं, थोड़ा नाम अलग हो सकता है बट ये बाकी सब सिमिलर होता है। ऑल राइट, सो अभी फाइल स्ट्रक्चर जैसे अभी गन्ना मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है? लाइक इट इज बेसिकली हायरार्किकल आर्किटेक्चर। अभी तक लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम बता दो। ओके, ग्रेट। गन्ना में आगे चल रहे। ओके, सो अब हम कमांड्स डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये हमने कर लिया। तो तुम्हारी जो डायरेक्टरी है उसका बता देगा। और हाँ, एक रूट की एक चीज तुमसे डिस्कस करनी थी कि हर यूजर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लिनक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, तो हर यूजर को तुम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं दे सकते। सो इसलिए कुछ यूजर होता है, एक रूट यूजर होता है। तो ऑब्वियसली मैं मेरे पीसी का रूट यूजर हूँ, और अगर तुम्हें भी चेक करना हो कि तो रूट यूजर बनना हो, तो तुम ऐसे ये कमांड लिख सकते हो sudo i, और तुम पासवर्ड, it will ask you for your password and you will be the root person of that PC। ये मेरे सिस्टम का नाम टफ है और मैं उसका रूट यूजर हूँ। ऑलराइट, इससे पहले मेरे सिस्टम का नाम टफ था और मैं उसका प्रेजेंट वर्किंग यूजर था गुरना में। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आ गई हैं इस कमांड से, इसलिए मैं उसका रूट यूजर बन चुका हूँ। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास रूट को एक्सेस करने की प्रिविलेजेस आ जाती हैं, तो लाइक इसका काफी बेनिफिशियल रहती है। हाँ, और तुम्हें कोई भी चीज इंस्टॉल भी करनी होगी तो उससे पहले तुम्हें sudo लिखना होगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टॉल सिस्टम में, क्योंकि उसकी जो फाइल्स होंगी वो रूट में जाके इंस्टॉल होंगी, तो उसके लिए। और इसे एग्जिट करना तो बस एग्जिट लिख देना। ऑलराइट, सो चेंज डायरेक्टरी, तो आप बता दो क्षितिज जी। हाँ, तो चेन डायरेक्टरी बेसिकली अभी आपको हायरार्किकल सिस्टम बताया था। तो अब जैसे आपको एक करंट डायरेक्टरी में आप, तो आपको बट उसके बाद कोई और डायरेक्टरी में जाना है,
बेसिकली आप चाहते हो कि आप अपना चीज अभी कहीं और स्टोर करी हो या आप उसको कहीं और स्टोर करो, तो लाइक यू ऑल्सो वांट दैट प्रिविलेजेस कि आप किसी और डायरेक्टरी में जाके उसको खोल पाओ, उसके अंदर चेंजेस कर पाओ, या उसके अंदर कुछ पड़ा है तो आप चेंज करना चाहते हो। सो दिस इज द कमांड विच इज बेसिकली यूज्ड कि ताकि आप अपनी डायरेक्टरी चेंज कर पाओ। ठीक है, एक बार गन्ने में इसको यूज करके दिखा, और कुछ ओके। ऐड करना है इसमें गन्ने में तो बता दो। नहीं, वैसे यही कमांड है। सो मैंने एक पी क्लब करके एक डायरेक्टरी बनाई थी इसको, और अगर जैसे आपकी स्क्रीन पे ज्यादा चीजें आ रखी हैं, आपको क्लियर करना है, तो यू कैन सिंपली राइट क्लियर, उससे क्लियर हो जाता है। ओके। सो आपको जैसे मैंने एक पी क्लब करके डायरेक्टरी बनाई थी, सब मैं पी क्लब में चेंज डायरेक्टरी टू पी क्लब एंड वो चेंज कर गया। और एक बार कोई नई बनी हुई डायरेक्टरी भी दिखा दे, उसके साथ क्या आता है। हाँ, सो अगर जैसे मुझे करना हो चेंज डायरेक्टरी और मैंने एक्स वाई जी कोई डायरेक्टरी बनाई ही नहीं, तो अगर मैं उसमें चेंज करना चाहूंगा तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तो आपको आपकी डायरेक्टरी पे ले जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट आ जाते हैं एल एस। एल एस स्टैंड फॉर लिस्ट सिलेक्शन। बेसिकली तुम्हारी जो जिस तुम डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसमें क्या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, वो लिस्ट कर देगा। क्योंकि वेबमिनल में ज़्यादा है नहीं मेरे पास, जैसे मैं ls टाइप करूँगा तो कुछ है नहीं, क्योंकि पी क्लब के अंदर मैं अपने कंप्यूटर की डायरेक्टरी में दिखा एल एस देता से हूँ। पहले MKDIR बता दे, उससे। ओके। सो अगर तुम्हें कोई भी या मेक डायरेक्टरी डायरेक्टरी। बनानी हो, बेसिकली विंडोज में चाहे तुम कह लो फोल्डर बनाना हो, तो तुम उसमें न्यू फोल्डर करते हो, तुम टर्मिनल में डायरेक्ट MKDIR और उसका आगे नाम लिख सकते हो। सपोज मुझे बनाना हो DSC करके एक फोल्डर बना दिया मैंने, तो ये बन गया। अब तुम ls करोगे तो ये लिस्ट हो गया इसके अंदर ये फोल्डर DSC। तो अब अब बेसिकली क्या हुआ कि मेक डायरेक्टरी DSC से पी क्लब जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर एक और बन गई DSC, और LS करने से क्या हुआ, पी क्लब के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी आ जाएंगी। तो अब जैसे बेसिकली DSC आ गई। ओके, और गुन्ने में कुछ और ऐड करने बता दो। ओके। सो कई बार क्या होता है कि तुम्हें एक फाइल बनानी है एक डायरेक्टरी के अंदर, बट वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा MKDIR और मुझे बनाना होगा सपोज क्षितिज, एक फोल्डर बनाना है मुझे, और वो मैं चाहता हूँ कि वो एक और डायरेक्टरी हो पी क्लब 1 उसके अंदर एग्जिस्ट करे। तो क्योंकि पी क्लब 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसमें एरर आ जाएगा कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी पी क्लब स्लैश क्षितिज बिकॉज देयर इज नो सच फाइल एज पी क्लब 1। सो अगर मैं इसी कमांड में p ऐड कर दूंगा एक आर्ग्यूमेंट, तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली p आर्ग्यूमेंट से क्या हुआ कि ये तो हमारे तुम्हारी लास्ट डायरेक्टरी है जो तुमने एम किया है क्रिएट करने के लिए, बट उसके लिए जितनी भी पेरेंट डायरेक्टरीज पहले चाहिए इस p आर्ग्यूमेंट से वो क्रिएट हो जाएंगी। एक अब बार LS भी कर दो। अगर तुम और ls करोगे तो एक p क्लब 1 की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं cd करके p क्लब 1 में जाऊंगा तो हाँ, एक बार अब ये बताओ, जैसे अब यहाँ पे LS करेंगे तो पी क्लब 1 में क्या आएगा, ये बताओ। लाइक अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी यहाँ पे, चलो पहले ये बताओ PWD क्या करके क्या आएगा यहाँ पे चैट विंडो में। अभी या बताओ यार, अभी PWD करके क्या आएगा। PWD इज बेसिकली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कर ले घर में, लिख लिख ओके। जल्दी सो से। अगर मैं सॉरी लिख लिख लिख। ओके। सो अगर मैंने जैसे pwd किया हाँ, तो स्लैश होम स्लैश गुरनमे स्लैश पी क्लब स्लैश पी क्लब 1, तो ये डायरेक्टरी आ गई। अब मैं पी क्लब के अंदर ls करूंगा पी क्लब 1 के अंदर, तो एक और डायरेक्टरी बन चुकी है क्षितिज। ओके। सो और अगर तुम्हें सपोज कोई भी कमांड आई रिपीट अगेन नहीं पता हो, जैसे कि MKDIR में तुम्हें लग रहा है कि मैं पेरेंट मुझे एक साथ मतलब अगर p
वो नहीं होता आर्ग्यूमेंट, तो तुम्हें एक बार हर अलग कमांड लिखनी पड़ती। पहले pclub1 क्रिएट किया, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया, तो उससे बेटर तुम सीधा करो man और mkdir, और ये आ गया। अब इसने बता दिया कि ये जो p आर्ग्यूमेंट है इसके ये नो एरर्स इफ मेक पेरेंट डायरेक्टरीज एज नीडेड। ओके, सो पेरेंट्स बनाने के लिए, और ये मतलब p शॉर्ट फॉर्म है, तुम डबल स्लैश लिख के पेरेंट्स भी पूरा लिख सकते हो। राइट, इसको क्यू से क्विट कर दो। अभी तक किसी को कोई डाउट है बता दो। लाइक अभी तक हमने कमांड्स लाइक फॉलो करी, और लाइक अपने पीसी पे तुम लोग कर रहे हो ना, क्योंकि ये सिंपल कमांड्स हैं, अपने पीसी पे पैरेलली कर लो एग्जीक्यूट। ऑलराइट, सो अब आगे चलते हैं। सो mkdir हमने डिस्कस कर लिया। अब कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो rmdir, बेसिकली अगर मुझे से रिमूव करना है तो आई जस्ट राइट rmdir के एस। सॉरी। हाँ, एक और चीज बता दे कि पिछली पिछली वाली चीज को वापस लाना होता है तो वो कौन सा था? हाँ, सो तुम अपवर्ड एरो की है ना, उसको दबाओगे तो तुमने जो लास्ट कमांड्स लिखी थी वो आ जाएंगी। जैसे इससे पहले मैंने mkdir, उससे पहले ls, उससे पहले pw, और नीचे ये दबाओगे चीज तो समझ आ गई ना, लाइक ये काफी यूटिलिटी वाली चीज होती है कि कोई पिछली हाँ। कमांड आपने लिखी है तो ऐसे आ जाएगी। और एक और चीज होती है टैब। हाँ, अब जैसे अगर सपोज मैंने k लिखा है, आई डोंट नो ब्राउजर में हाँ काम कर रहा है। सो बेसिकली मैंने k लिखा है और k से रिलेटेड सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है इसमें, तो इसने ये ऑटो कंप्लीट कर देता है टैब दबाते ही। ये चीज क्लियर होगी ना अब अपर कीवर्ड और ये टैब स्पेस के बारे में। लाइक इसको खुद एक बार ट्राई करके देख लो अपने पीसी पे। तो अब जैसे मैंने ये क्षितिज डायरेक्टरी रिमूव कर दी, तो अगर मैं ls करूंगा तो कोई कुछ भी नहीं आएगा, इट इज एम्प्टी। ऑलराइट, सो हाँ, इसके बाद आई थिंक इसमें rm हम डिस्कवर ओके, सो इसके बाद ही है rm। ओके, सो तुम rmdir से सिर्फ वो यार डायरेक्टरीज। गुन्ने में टच और कैट के बारे में बता दे, वो रहेगी फाइल वाली। ओके ओके, सो टच और कैट इसके बाद है वो। इसके बाद है? अच्छा हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो rm तुम्हें कोई भी फाइल रिमूव करनी हो उसके लिए है, और नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज। सो बस तो मैं बताऊंगा कैसे तुम नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अब तुम जैसे सपोज मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ इसके अंदर। सपोज मैंने इसके अंदर टच बेसिकली एक कमांड होती है उसके लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए। इसके बारे में अभी वो बाद में पूरा अच्छे से बताएंगे। सो टच example .txt, सो मैंने इसमें ऑलराइट, सो काफी क्लटर हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। सो मैंने जैसे कि पिछली कमांड में टच example.txt किया था, अब तुम ls करोगे तो तुम देख सकते हो example.txt करके एक फाइल है, वो मतलब एग्जिस्ट करती है। सो इसके अंदर अगर हमें ये फाइल रिमूव करनी हो तो rm example, और यहाँ पे तुम टैब टैब करके सिर्फ टैब का यूज करके पूरा आगे example.txt तुमने ये रिमूव कर दिया, ये फाइल रिमूव हो जाएगी। rm is short for remove। ओके, सो अब तुम ls करोगे अगर दोबारा, तो वो फाइल इसमें नहीं है, इस डायरेक्टरी में। तो अब मैं इसको दोबारा ये फाइल क्रिएट करता हूँ, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हाँ, और अगर एक शॉर्टकट है, अगर तुम्हें पिछली डायरेक्टरी में वापस जाना है तो तुम ये cd और स्पेस डबल डॉट, तो इससे तुम लास्ट डायरेक्टरी में चले गए। और मैं बेसिकली pclub, पेरेंट डायरेक्टरी में चले गए cd डॉट डॉट हाँ करके। उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में pclub1, और cd
स्पेस हाइफन से तुम जो लास्ट जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे थे उसमें चले जाओगे, जैसे इस डायरेक्टरी में चले गए, वो लिस्ट भी कर देता है। ओके, सो अभी हम वापस जिस डायरेक्टरी में थे उसमें चलते हैं। तो हम पी क्लब 1 से पी क्लब में आ गए। अब जैसे कि हमने देखा कि पी क्लब के अंदर पी क्लब 1 है, पी क्लब 1 के अंदर हमारी example.txt है। सो अगर मैं rmdir पी क्लब 1 करूंगा, सो या एरर आ जाएगा कि it failed to remove p club 1 because directory is not empty. Okay, I'll zoom in a little. अरे इससे यार मैं अब ठीक है, like is the तुम screen लोग right अपने now? मैं अपने टर्मिनल पे कर लेता हूँ क्योंकि इसमें फिर टेक्स्ट बड़ा हो सकता है ना। हम्म। All right, is it visible now? ओके, सो इसमें मैं जल्दी बना देता हूँ mkd, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। मैंने एक्चुअली बना रखी है शायद पी क्लब, और अब एक डायरेक्टरी और बनाते हैं mkd। ओके, सो example.txt करके एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी इसके अंदर। अब मैं लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में गया, सॉरी इसमें मैं गया, तो अब पी क्लब 1 मुझे डिलीट करना है। तो अगर मैं rmdir p और टैब का यूज करूँगा तो ये एरर आ गया कि rmdir failed to remove because directory is not empty, and we also know कि उसके अंदर हमने example.txt करके फाइल सेव करी है। सो अगर मुझे ये डायरेक्टरी रिमूव करनी होगी, सो आई कैन यूज rm-r। r बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव। अब आगे तुम शायद प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे रिकर्जन, तो रिकर्जन क्या करता है, मतलब एक तरीके से एंड तक जाता है एक किसी कमांड के, और फिर उसके बाद फर्स्ट के साथ डिलीट करता है। वो तुम्हारे जैसे लास्ट फाइल डिलीट करेगा, फिर उसका पेरेंट डिलीट करेगा, फिर उसका पेरेंट डिलीट करेगा, फिर उसका पेरेंट डिलीट करेगा। तो बेसिकली ऐसे चेन रिएक्शन टाइप चलता रहता है। तो मैं rmr p club 1 डिलीट करूंगा तो डिलीट हो गया। अब मैं ls करूंगा इसके अंदर, तो ये example.txt जो मैंने पहले बना रखी थी एक दूसरी कमांड के लिए वो है, बट इसके अंदर p club 1 वाली डायरेक्टरी नहीं है। ऑलराइट, सो अभी तक किसी को कोई डाउट है, लाइक यहाँ तक एग्जीक्यूट करके देखा? एक बार बता दो चैट विंडो में। लाइक ये समझ आ गया कि रिकर्सिव फंक्शन क्यों यूज हो रहा है। क्या समझ में आया? अर्चित क्या हुआ इसमें नो सर, यार? आवाज नहीं आ रही तेरी। ऋत्विक ने नो सर लिखा है ना? नो सर मतलब एनी डाउट का था मेरे ख्याल से, पता नहीं। रिकर्सिव फंक्शन एक बार दोबारा बता दे फिर, किसी ने नो लिखा हुआ ओके, है। सो रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि मतलब मुझे एनालॉजी समझ नहीं आ रही, बट ये समझ लो कि सपोज तुम्हें एक ट्री है और तुम्हें उसको डिलीट करना है, तो बेसिकली वो ऐसे डिलीट करेगा कि पहले लीव्स को रिमूव करेगा, फिर स्टेम को रिमूव करेगा, फिर उसकी जो बार्क है उसको रिमूव करेगा, फिर रूट को रिमूव करेगा। सो अगर तुम्हें जैसे कि वो क्या करेगा, अगर जैसे हमारा जो फाइल थी इसमें हमारी पी क्लब 1 फोल्डर के अंदर example.txt करके फाइल थी, तो अब जब हम डायरेक्टरी रिमूव करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी फीचर है
लिनक्स के अंदर कि कोई भी डायरेक्टरी जो एम्प्टी ना हो वो RMDIR से रिमूव नहीं होती। उसको तुम फोर्सेबली कर सकते हो बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। सो अगर तुम रिकर्सिव करोगे तो उससे क्या होगा कि पहले वो example.txt डिलीट होगी, कि वो डिलीट हो गया तो डायरेक्टरी एम्प्टी हो गई, तो इसकी वजह से pclub भी 1 भी डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। सो इज दिस क्लियर नाउ? I think it is fine. आगे चल। ठीक है। Yeah, Vishal Kumar Singh has given a nice analogy like peeling an onion, it will ठीक। remove the files. Alright, so our next command would be touch. बेसिकली तुम कोई भी एक्सटेंशन की फाइल, बेसिकली एक्सटेंशन शायद तुम्हें थोड़ी देर बाद जाके पता लगेगा कि ये सब धोखा होता है, एक्सटेंशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी फाइल्स बाइनरी होती हैं। सो बेसिकली तुम क्या करोगे कि कोई भी तुम्हें फाइल बनानी हो, जैसे example.txt इसमें है, तो मैं टच करके कोई भी, जैसे गुरु में .c++ की फाइल बनानी हो तो .cpp टच कर सकता हूँ। अब ls करूँगा तो ये बन चुकी है फाइल। ऑलराइट, सो ये टच कमांड का और मेरे ख्याल से कोई ऐसा है नहीं। बाकी तुम्हें अगर इसके बारे में और इसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखना हो तो इसके आगे मैन कर दो। Okay, now copying file. So copying file from one directory to another. Suppose अब एक डायरेक्टरी और बना लेते हैं हम इसके अंदर, mkdir dsc करके हमने एक डायरेक्टरी बना ली। Alright, so अब हमारी जो gurname.cpp फाइल है इसको हम कॉपी करेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर। So basically उसकी कमांड सिंपल है, कॉपी पहले आएगी तुम्हारी जिस सोर्स डायरेक्टरी है, तो सोर्स डायरेक्टरी में क्योंकि हम एक स्टेप बैक जा रहे हैं तो या तो तुम पूरा सोर्स लिख सकते हो /home / अपना यूजर नेम, फिर उसके बाद जहाँ पे है पूरा लिख सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट है कि अगर वो पिछली डायरेक्टरी में है या फिर करंट डायरेक्टरी में है, तो जैसे मैंने बताया था पिछली डायरेक्टरी के लिए // और gurname.cpp। अब यहाँ पे भी तुम फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, तो अगर मैं इसको 1.cpp कर दूंगा तो ये हो गया। मैं इसमें ls करूंगा तो यहाँ पे 1.cpp आ गई। ऑलराइट, ये कमांड एक बार खुद यूज करके देखी तुम लोगों ने अभी, लाइक बता दो। और ये शॉर्टकट्स काफी काम आते हैं क्योंकि कहीं पर तुम्हें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में टाइप करना हो, तो सिंगल डॉट इज फॉर जिस डायरेक्टरी में तुम करंटली हो, डबल डॉट इज फॉर जिस डायरेक्टरी में तुम हो उससे उसकी पेरेंट डायरेक्टरी, और हाइफन इज फॉर लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें तुमने लास्ट काम किया। हाँ आगे चल करना। ओके, सो इसमें अब मैं लास्ट डायरेक्टरी में वापस जाता हूँ। अब डीएससी के अंदर एक फाइल है, तो अगर मुझे डीएससी फोल्डर डायरेक्ट कॉपी करना हो तो वो कॉपी नहीं होगा। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक डीएससी का क्लोन बनाना हो, देखो हमने इसमें रिकर्सिव, इसने बता दिया कि हमने रिकर्सिव फंक्शन इसमें नहीं किया स्पेसिफाई, तो इसने हमें एरर दे दिया कि आर नॉट स्पेसिफाइड, तो इसके अंदर की फाइल्स हमारी कॉपी नहीं हुई। अब ls करेंगे तो वो हमारी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई dsc1। अब अगर मैं दोबारा करूंगा इसमें रिकर्सिव फंक्शन के साथ, तो अब तुम ls करोगे तो dsc1 डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इस डायरेक्टरी के अंदर मैं क्लियर करता हूँ एक बार। अब तुम dsc1 के अंदर जाओगे, जब ls करोगे तो यहाँ पे 1.cpp है जो तुमने फाइल dsc फोल्डर के अंदर क्रिएट करी थी। सो रिकर्सिव फंक्शन जैसे डिलीशन के लिए यूज करता है, तुम सेम एनालॉजी यूज इमेजिन कर सकते हो, वो कॉपिंग के लिए भी वैसे ही यूज करता है। उसको पहले फाइल कॉपी करेगा, फिर उसकी पेरेंट डायरेक्टरी कॉपी करेगा, और अगर कोई उसके ऊपर भी डायरेक्टरी होगी उसे भी कॉपी कर लेगा। ओके, सो अब यहाँ पे यू कैन रियलाइज द पावर ऑफ लिनक्स कि
जैसे कई बार क्या होता है, अब जैसे तुम विंडोज में फाइल कॉपी करने जाओगे और तुम्हें 3-4 फोल्डर एक साथ कॉपी करने हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन इज वे मोर फास्टर देन कॉपिंग फाइल्स वन बाय वन। ऑलराइट, सो एक अब बार हिस्ट्री भी बता दे, हिस्ट्री कमांड जो होती है ऐसी बता दे एक बार, एक यूज होती रहेगी। ओके, एक सेकंड। सो तुम्हारी जैसे कि तुम्हें अगर चाहिए हो हिस्ट्री, तो तुम हिस्ट्री कमांड यूज कर सकते हो, और ये तुम्हारी सारी जितनी भी कमांड्स तुमने यूज करी हैं वो बता देगा इस बैश फाइल के अंदर। ये भी काफी छोटी सी हैंडी हैंडी कमांड होती है, काफी यूज हो जाती क्योंकि है कई बार नॉर्मली। क्या होता है, सपोज तुमने किसी लिंक से फाइल डाउनलोड करी, फिर लिंक तुमने कुछ और कॉपी कर लिया, तो वो तुम्हारा लिंक कॉपी नहीं हुआ एक्चुअल वाला, या फिर वो गुम गया, तो तुम इसमें जाके हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो मैंने कौन से लिंक से डाउनलोड किया था। ऑलराइट, सो अब हमारी नेक्स्ट कमांड क्या थी? या mv कमांड। सो mv में जैसे कि नाम है, मूव्स द फाइल डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। इसमें सॉरी, इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अब इसमें हमारी ls करके इसमें हमारी 1.cpp है, इसको हमें किसी और लोकेशन पे मूव करना है। बेसिकली जैसे तुम विंडोज में कट करते हो, उसका कमांड है mv 1.cpp। तो और नाम भी चेंज कर सकते हो, तो अगर मुझे जैसे पिछली डायरेक्टरी में ले जाना है इसे, तो मैं इसका नाम चेंज करके कर दूंगा 2.cpp। अब इसमें जाएंगे तो इस फोल्डर, ये हमारी डायरेक्टरी खाली है। अब प्रीवियस डायरेक्टरी में गए और ls किया, तो यहाँ पे ये फाइल आ गई 2.cpp। ऑलराइट, सो आई गेस mv कमांड। बाकी अगर तुम्हें और इसके आर्ग्यूमेंट्स देखने, इसमें भी रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हो, वो सेम ही होगा, डायरेक्टरी मूव कर देता है। मैं mv, या तो इसमें लाइक तुम्हारा जैसे होगा कि एक बैकअप बना लेगा कि, और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई फाइल होती है और वहाँ वहाँ तो मूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट सेम नाम की फाइल उस फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो तुम ये फोर्स आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो, जो कि तुमसे मतलब प्रॉम्प्ट नहीं करेगा ओवर राइटिंग से पहले। और आई यूज कर सकते हो कि इंटरेक्टिव होगा कि को होगा, और एन यूज कर सकते हो कि कोई भी फाइल ओवर राइट ना हो। तो ये सारे इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट कमांड देख सकते हैं, cat। सो cat बेसिकली लिस्ट कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल। सो जैसे कि हम सपोज, चलो एक काम करते हैं, example.txt में ऑलरेडी मैंने कुछ लिख रखा है, तो हम एक नई फाइल बनाते हैं, टच सिम example1.txt। ये हमने एक नई फाइल बनाई। अब हम वैसे तुम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो इसके लिए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि टेक्स्ट एडिटर्स और बाकी सॉफ्टवेयर्स तुम इसी से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट गेडिट एक वो टूल है बेसिकली, उसका ubuntu के साथ ही आता है, तो ये नोटपैड टाइप का है, तुम ये यूज कर सकते हो, gedit.ex1.txt। तो ये तुम्हारा इसके अंदर अब खुल गया ये, और तुम इस फाइल में कुछ भी लिख सकते हो, सपोज हेलो वर्ल्ड तुमने इसमें लिख दिया। ये सबकी फाइल खुली है, एक बार ये बता दो, जो भी सॉरी, इसमें कमांड, एक बार इनसे पूछ ले कि सबकी फाइल ये वाली खुली ना, एक बार बता दो। हाँ, गन में चला दो। ऑलराइट, सो सपोज हमने इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, जो कि काफी क्लीशे है, तो कुछ और लिख देते हैं, ब्ला 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 लिख देते हैं, और इसको सेव कर दिया।
और एग्जिट कर दिया। जैसे गेडिट होता है वैसे एक टर्मिनल के इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर्स भी होते हैं, उनमें से काफी पॉपुलर है विम। तो तुम विम भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें मतलब टर्मिनल से बाहर नहीं जाना तो विम भी यूज कर सकते हो, उससे भी तुम सेम मिल सकते हो। पर विम थोड़ा सा मतलब बिगनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें मतलब इसमें टेक्स्ट एडिटर की भी कमांड्स होती है, तुम्हें एग्जिट करना है, इंसर्ट करना है, तो ये सब तो उस कॉम्प्लिकेशन में तो तुम थोड़े से परफेक्ट हो जाओ फिर विम भी यूज कर लेना। तो इसको एग्जिट कर देते हैं अभी। तो हाँ, हम कैट यूज कर रहे थे, अब मैं सपोज कैट करूंगा ex1 डॉट txt, तो इसने ये कंटेंट्स बता दिए इस फाइल में, ये लिखा हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला। राइट, सो बेसिकली ये इसी के लिए होता है कि तुम्हें अगर सपोज पूरी फाइल नहीं खोलनी और एक बार जल्दी से बस कंटेंट्स चेक करने हैं तो वो कैट होता है। कैट इज शॉर्ट फॉर कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन होता है मतलब कोई भी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। ये तुम प्रोग्रामिंग में अभी शायद अगर फर्स्ट सेम में हो तो और एक दो महीने में पढ़ लोगे। ऑलराइट, सो कैट हो गया। हाँ, सो ये हो गई तुम्हारी बेसिक कमांड्स। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमांड्स है, क्षितिज आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो? एक बारी पहले आगे वाली बता दे, इस पे आप बाद में आते हैं। ओके, सो जैसे कि तुम अभी सी सी प्लस प्लस सीखोगे, तो सी सी प्लस प्लस कैसे करना है टर्मिनल से, तो उसका एक बेसिक प्रोग्राम लिख के दे। गेडिट से नोटपैड खुला नहीं। अरे हाँ, अगर तुम मतलब वेब टर्मिनल यूज कर रहे हो तो सारे फीचर्स नहीं आएंगे उसके, तो इसलिए वो तुम्हारी फाइल टेक्स्ट फाइल एडिट नहीं होगी वेब टर्मिनल में, क्योंकि इसमें मतलब तुम्हारे सिर्फ कर्नल आया है, तुम्हारा पूरा उबुंटू ओएस नहीं आया, तो वेब टर्मिनल में ये नहीं होगा गेडिट वाला कमांड। हाँ, नैनो एडिटर भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर ये, मैं यूज नैनो। मैंने शायद से इंस्टॉल नहीं कर रखा नैनो, हाँ है। तो ये भी GNU का टेक्स्ट एडिटर है, ये भी शायद तुम्हारा उसमें नहीं खुलेगा वेब टर्मिनल में, बट ट्राई करके देख लो अगर खुल जाए तो। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सी सी प्लस प्लस कैसे तुम टर्मिनल से कंपाइल कर सकते हो। तो बस तो तुम विंडोज में भी कंपाइल कर ही रहे होगे, ये तुम्हारे डेव सी प्लस प्लस या फिर और कौन सा कोड ब्लॉक्स वगैरह से। बट जब तुम आगे काम करोगे तो बेसिकली तुम सारा काम टर्मिनल पे ही करोगे, तो इट मेक सेंस कि तुम मतलब इतना तुम्हें ज़्यादा थोड़ा बेसिकली प्रोग्रामर्स थोड़े से लेजी होते हैं ना, तो उन्हें दूसरे एप्लीकेशंस पे जाना पसंद नहीं है। सो हम एक बना रखी है हमने CPP फाइल। ऑलराइट, तो हम इसमें एक सिंपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। वैसे तुम कोई भी जैसे लिनक्स में ऐसा नहीं है कि बाकी जैसे विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह इंस्टॉल नहीं होते जैसे मैंने कर रखा है, तो तुम ये कर सकते हो अपना विजुअल स्टूडियो को, जो भी टेक्स्ट एडिटर आईडी तुम्हें पसंद हो वो है सारे लिनक्स में अवेलेबल, उनके ओपन सोर्स वर्जन। विजुअल स्टूडियो नहीं है बट VS कोड अवेलेबल है। सो इसको अभी हम किस पे, इस पे लिख लेते हैं विम पे। ऑलराइट, सो मैं कभी बना बनाया प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। ऑलराइट, सो ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए प्रोग्रामिंग में, बट अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए। तो ये जैसे ये एक सिंपल प्रोग्राम है, ये दो इंटीजर्स लेता है और उनका सम वो करता है रिटर्न। ऑलराइट, सो हम इसको अभी सेव कर देते हैं WM।
बट अब तुम एक बार इसमें चेक कर सकते हो कि तुम्हारी फाइल सेव हुई है कि नहीं, तो इस पे जाके तो ये देख लो, जैसे ये मेरी फाइल में कंटेंट्स अवेलेबल हैं। सो अभी हम क्या करेंगे कि इसको कंपाइल करना सीखेंगे। तो कंपाइल करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी कमांड्स हैं, बट सिंपलेस्ट कमांड है मेक वाली। सो ये वैसे तो तुम जी++ यूज कर सकते हो। तो जो हमारे GNU है उसी के कंपाइलर्स हैं दोनों। कंपाइलर्स आई थिंक तुम्हें पता होगा, G++ और GCC, ये ओपन सोर्स कंपाइलर्स हैं। Vim इज अ टेक्स्टेड, ओके सॉरी। तो तुम एक कंपाइलर यूज कर सकते हो, GCC और G++ GNU के कंपाइलर्स हैं, ये दोनों यूज कर सकते हो। तो अगर सपोज तुम्हें इनकी कमांड नहीं पता तो तुम मैन GCC करके एक बार देख लो, तो ये तुम्हें बता देगा कि क्या क्या कमांड्स हैं। मैं बेसिक कमांड बता देता हूँ, कोई भी फाइल के लिए जो यूज होगी GCC। पहले तुम्हारी जो सोर्स कोड है उसकी फाइल, तो यहाँ पे है gurname.cpp। फिर ये एक इसमें आर्गुमेंट है आउटपुट फाइल -o, और इसमें तुम्हारी जो आउटपुट फाइल है उसका नाम लिख सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ AASD। ओके, सो एक एरर आ गया। अब ये दिक्कत होती है उसकी, तुम्हारे ये टेक्स्ट एडिटर्स की टर्मिनल वाले की, ये वो नहीं बताते तुम्हारे एरर्स। तो इसमें कौन सी लाइन पे एरर दिखा रहा है? ओके, सो इसमें वो नहीं यूज किया बेसिकली, यूजिंग नेम सेट स्टैंडर्ड यूज किया तो है। ओके, इसके बाद इन्होंने ये डाल दिया विच इज नो इलीगल। ओके, इसलिए नेट से कोड कॉपी नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, गुन्नू में क्या एरर आ रहा है तेरा? अरे पता नहीं, इसमें शायद मैंने कॉपी करी थी फाइल, कुछ है एरर। अभी बेसिक प्रोग्राम में बना देता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, क्या एरर आ रहा है? ओके, कहाँ पे मतलब क्या एरर है? ऑलराइट। सो एरर वो था कि हम GCC था हाँ तो
ठीक है, पुराना G++। कंपाइलर था, हम्म। तो वो स्टैंडर्ड का आउट वो पूरा मांग रहा था। मैंने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज कर रखा था। सो अगर तुम्हें अब इसमें एलएस करोगे, एक बारी इनसे पूछ ले कि ये नॉर्मल जो अभी कोड चलाया था इसने चला कि नहीं चला। चल एक बार दोबारा चला के देख ले। मैं एक बार देख लेता हूँ चल भी रहा है कि नहीं। एक सेकेंड। ओके, सो चल रहा है। मैं एक बार पिछला वाला कोड कर लेता हूँ और G++ से उसे कंपाइल कर लेता हूँ। राइट। सो GCC जो है वो थोड़ा पुराना कंपाइलर है और वो बेसिकली तुम्हारा इसका C के लिए तुम यूज कर सकते हो, C++ के लिए G++ यूज करना, या फिर पूरा C की स्टाइल में C++ लिखना तो GCC के लिए हो जाएगा। तो एक बार इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आया। अब तुम ls करोगे तो देखोगे ये ASD नाम की जो मैंने आउटपुट फाइल करी थी वो आ चुकी है। सो अब हम इसमें हमारा वो लेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए कोई भी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल है या फिर तुमने उसे कंपाइल्ड फाइल है, बाइनरी फाइल, उसको रन करने का एक ही कमांड है ./ और फाइल नेम। बाइनरी फाइल्स का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, सो इसलिए ./asd। अब इसमें एंटर टू इंटीजर्स, सो हम कर देते हैं 4 और 5 और इसमें ये आ गया 4 + 4 = 8। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, तुम इसमें ऐसे कर सकते हो। तो ये ऐसे सी भी तुम सेम GCC कंपाइलर यूज करना C के लिए। C++ के लिए मैंने G++ कंपाइलर यूज किया है। एक बार ये ऑलराइट, बता दो कि लाइक तुमने खुद इसको रन करा अगर। मैं तुम्हें कोड भेज देता हूँ चैट बॉक्स में। हम्म। एक बार इसको रन करके देख लो यार। एक बार इसको कॉपी पेस्ट करके रन हम्म। करके देख लो। Linux, Nishant, Linux doesn't require an IDE basically। IDE भी तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड पे ना IDE के यही कमांड्स चल रहे होते हैं, G++ और वो तुम्हारी आउटपुट फाइल बनाता है। IDE भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यूज किया था एरर निकालने के लिए। IDE बेसिकली तुम्हारा विजुअल स्टूडियो कोड IDE नहीं है, वो तो एक तरीके का मतलब टेक्स्ट एडिटर ही है, पर उसमें काफी सारे एक्सटेंशन हैं तो वो गलती बता देता है कि कहाँ कहाँ गलती है। सो बेसिकली तुम IDE यूज करते हो वहां पे जहाँ पे मतलब तुम्हें गलती या फिर डीबग करना हो कोड। अगर सिंपली लिखना है वैसे तो IDE में लिख टेक्स्ट एडिटर्स यूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, और ये हो गया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया, एटम भी है एक, वो भी यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं मतलब बेसिकली तुम्हारे नोटपैड जैसे, जैसे वो थोड़े इंट्यूटिव होते हैं और तुम्हें एरर्स बता देते हैं कि तुम्हारे कोड में एरर्स कहाँ कहाँ हैं। विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें इनबिल्ट टर्मिनल है, तो तुम यहाँ से ही टर्मिनल एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कंपाइल कर लो, उसको कमांड दे दो। किसी ने पूछा कॉपी पेस्ट नॉट वर्किंग इन वर्चुअल बॉक्स, लाइक इस कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना वहां पे। एक बार गन्ना में दोबारा प्रोसेस रीड कर दे, एक बार पूछ भी रहा है कोई। ओके ओके, सो हमने एक फाइल बनानी है पहले। टच आपका जो भी आपको नाम रखना हो, सपोज h1.cpp आपने नाम रख लिया तो टच करके ये फाइल बन गई। ऑलराइट, सो ये तुमने फाइल बना दी। अब जरूरी टर्मिनल से तुम ये फाइल ऐसे बना सकते हो, वैसे तुम राइट क्लिक करके और न्यू फाइल जैसे तुम विंडोज में बना सकते हो, लिनक्स में वैसे भी कर सकते हैं हम। सो एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो वो फाइल तुमने बना ली। अब तुम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके, जैसे कि अगर तुम्हारे पास सिंपल चाहे नोट पैड में ही जाके या गेडिट में जाके तुम वो फाइल खोल सकते हो। अब ये फाइल खुल गई क्योंकि ये एम्प्टी है, तो मैं इसमें अब वो कोड पेस्ट कर दो और इसको सेव कर दो। ठीक है,
सेव करने के बाद चाहे तुम नैनो वगैरह कुछ भी यूज करो। और हाँ, ये याद रखना, पेस्टिंग के लिए इसमें शॉर्टकट कंट्रोल भी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट भी होता है टर्मिनल में। पेस्टिंग के लिए, कॉपिंग के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट भी। राइट। सो तुमने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, इसके बाद कमांड होती है ये G++ वाली। सो G++ कमांड में तुम ये हमारा पहले आएगी हमारी सोर्स फाइल, फिर हम आउटपुट वाला आर्ग्यूमेंट और उसके आगे जो भी तुम्हें नाम रखना हो आउटपुट आर्ग्यूमेंट का, इसको एंटर मारोगे तो ये तुम्हारा कंपाइल हो गया कोड, क्योंकि कोई एरर नहीं आया। पहले मेरा एरर आ रहा था क्योंकि मैं GCC कंपाइलर यूज कर रहा था जो कि C का कंपाइलर है। ओके, वो C++ के लिए नहीं है, तो मैं वो कंपाइलर यूज कर रहा था इसलिए मेरा एरर आ रहा था। सो G++ से तुमने ऐसे कंपाइल कर लिया। अब तुम ls करके देख लो कि तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब वो ASD करके मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं उसको सीधा रन करने के लिए, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, तुमने ये पढ़ा ही होगा कि हर मशीन, जो हमारे नॉर्मल कोड होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होकर बाइनरी फाइल में स्टोर होता है, 0s and 1। तो उसको रन करने के लिए ./ और फाइल का नाम, और ये तुम्हारा प्रोग्राम रन हो गया। और ये तुम ऐसे रन कर सकते हो। और किसी और को कोई डाउट है इस प्रोसेस में? अभी किसी को कोई डाउट है? लाइक कोई पूछ रहा था कॉपी पेस्ट करके नहीं चल रहा। लाइक मेरे ख्याल से तुमने उसको ही सीधा कमांड लाइन पे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा कोड को कि हाँ अंशद, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैंने बोला इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद मतलब बस एक बार पैकेजेस इंस्टॉल करना सिखा देंगे। इसके बाद कितने बजे तक करना है अर्चद? मैं बता दूं। यार मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ टाइम यार अर्चद तेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? चल बोल, कम ही आ रही है। क्या कह रहा है? तो गुन्नू में आगे चल ले। वो PSAUX का बता दें अब कि पहले पैकेजेस का? आप बता दो PSAUX में। गुरनवेश कितनी देर को और पेंडिंग रहता है? आई थिंक अभी लाइक 15 हम to तो 20 मतलब 15-20 मिनट्स में फिनिश कर सकते हैं। इफ इट इज लाइक ओके विद द पार्टिसिपेंट्स, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो रहा है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हो। सो यू पीपल कैन लेट अस नो इन द चैट वंस शुड वी कंटिन्यू और actually like from tomorrow it is get up, so we wanted that if we can complete it today itself. yes, that seems logical also. चलो ठीक है, then 15-20 minutes ले लो and then we can do it. Yeah, sure. अनिकेत, कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लिनक्स के साथ आता ही हाँ, है। अब आ रही है आवाज? हाँ अर्चित बोल। ओके, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी वो करा दो इन्हें ग्रेप, वो सब बेसिक कमांड जो है पैकेजेस वाली, ठीक बिकॉज है। आई थिंक कल वही यूज होनी है गिटहब में, और जो बाकी होगी आई थिंक इनको शेयर कर देंगे PDF और PPT। लाइक मैं आप लोगों को लाइक ये रिकमेंड करूंगा कि आज रात को या कल मॉर्निंग तक एक बार अपने एंड पे लिनक्स इंस्टॉल भी कर लेना। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, क्योंकि कल गिटहब है तो उसमें तो फिर डायरेक्टली गिट उससे शुरू होगा। लाइक इंस्टॉलेशन का नहीं होगा, तो उसके पहले एक बार जरूर करके रखना, तो बेनिफिशियल रहेगा काफी। ठीक है, गुन्नू में चल। अब आप ये बता दो PSAUX वगैरह अगर, या फिर PSAUX बेसिकली प्रोसेस स्टेट है। लाइक प्रोसेस स्टेट कमांड है। लाइक ये जो कमांड है, लाइक लिनक्स में सबसे ज़्यादा यही वाली कमांड यूज़ होती है। तो AUX बेसिकली AUX क्या होता है कि A से सारे प्रोसेसेस शो होते हैं और U से सारे प्रोसेसेस डिस्प्ले हो जाते हैं, और X जो है कि जोन से प्रोसेस टर्मिनल से अटैच भी नहीं है ना, हम उनके बारे में बता सकते हैं। लाइक करंट वर्किंग जो प्रोसेसेस हैं, हमें अगर उनको देखना है तो ये कमांड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक बार इसको एग्जीक्यूट भी कर। हाँ ठीक है, तो ये देखो इससे पता चल रहा है। हाँ बोल करना। आप, नहीं मैं बेसिकली PID फर्स्ट दिखा रहा कॉलम था। इज द रूट डायरेक्टरी,
ठीक है, सेकंड वन इज द पीआईडी, बेसिकली द प्रोसेस आईडी, और फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये चीज है। ठीक है। बेसिकली तुम्हारा जो टास्क मैनेजर होता है विंडोज में, हम्म, उसमें तुम जाके देखते हो प्रोसेसेस कौन कौन से रन हो रहे हैं। अब लाइक इसके आगे और बड़ी सारी कमांड यूज होती हैं, लाइक बड़ी बारी, लाइक मतलब ये होता है कि मेरे साथ लाइक कभी कभी होता है, लाइक क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट लूप चल रही है ना, तो यू कैन यूज किल कमांड, कि वो पर्टिकुलर पीए उसकी प्रोसेस आईडी देख लो, और उसके बाद किल कमांड भी यूज होती है। नेक्स्ट कमांड अकेली थी ना। हाँ हाँ। और लाइक किसी प्रोसेस को अगर किल करना है तो किल पीआईडी, बेसिकली उसकी हर प्रोसेस की आईडी यूनिक होती है, तो उससे कोई भी प्रोसेस को आप किल कर सकते हो। अभी तक किसी यूज करके देखिए कमांड सबने एक बार। और चैट विंडो में कोई बता दो कि इफ यू यूज द PSUX इन दिस कमांड आल्सो, अगर में कुछ ऐड करना है तो बता दो। हाँ, नहीं इसका अभी तो इतना ही यूटिलाइजेशन होगा। तो अगर कोई सपोज जैसे कई बार तुम्हारा इनफाइनाइट लूप वगैरह चल जाता है कोड में, तो उसको किल करने के लिए काम आ जाती है। या और वैसे बड़ी बारी कई बार टर्मिनल पे कोई लूप चल गया तो कंट्रोल जी और कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हो, मतलब बड़ी बारी टर्मिनल। लाइक ये भी होता है कि तुम डेवलपमेंट कर रहे होते हो, बट तुमने बैक की कमांड नहीं रखी होती, लाइक नेक्स्ट पेज पे चले गए बट तुमने बैक की कमांड नहीं रखी, तो उसमें भी बड़ी बारी किल कमांड यूज कर सकते हो, ताकि अब एक बारी अपने उसको रोक लो। अभी किसी एक बारी यूज करके देखी तुम लोगों ने कि नहीं यार, चैट विंडो में बता दो। ऑलराइट, सो अब आगे है ग्रेप कमांड। सो इसमें मैं तुम्हें ये मैंने एक फाइल बना रखी है, इसको यूज करके एक बार पहले दिखा देता हूँ इसके कंटेंट्स क्या है। एग्जाम्पल डॉट txt। तो ग्रेप कमांड होता है बेसिकली तुम्हें फाइल में कुछ सर्च करना है तो वो तुम कर सकते हो उस ग्रेप कमांड से। और जैसे कोई कीवर्ड ढूंढना है कि ये कौन सी टेक्स्ट फाइल में, एक ही टेक्स्ट फाइल में नहीं, तुम मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कि एक ये हो गया, जैसे तुम्हें इस फाइल में है जो हमारे एग्जाम्पल डॉट टी इसमें देखना है कि ब्ला वर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है। सो तुम इसकी कमांड लिख सकते हो grep, और यहाँ पे आई का मतलब है कि तुम अगर जैसे कि केस सेंसिटिव नहीं रखना, कि बस तुम्हें लेटर्स देखने हैं तो तुम आई डाल सकते हो यहाँ पे, नहीं तो केस सेंसिटिव हो जाता है वो। तो और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग डाल दो जो तुम्हें सर्च करनी है। इसके बाद ब्ला जौन सी भी फाइल्स में था उनके बारे में आ गया। ठीक है। अब ये ex1.txt में भी मैंने ब्ला 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 लिखा था और example.txt में भी। मुझे स्पेसिफिक एक फाइल में सर्च करना है तो मैं उसका पूरा नाम लिख दूंगा, तो इसमें ये हाईलाइट होके आ गया कि हाँ यहाँ 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 ये वर्ड है। ऑलराइट, तो अगर केस सेंसिटिव रखना हो वो भी रख सकते हो। और एक बार अगर तुम्हें देखना हो कितनी बारी हो रहा है तो उसके लिए सी यूज कर सकते हो, कि इस फाइल में कितनी बारी ये वर्ड आ रहा है, तो 10 बार आ रहा है। और बाकी तो यही है कि बाकी इसके और एक्सटेंशन है तो मैन पे जाके देख लेना ग्रेप पे। एक होता है W, उससे तुम्हारा आ जाता है कि ये पूरी फाइल में जैसे कि कोई सब स्ट्रिंग होगा वो भी सर्च कर लेगा। जैसे कि अगर तुम ए डालोगे तो ये यहाँ पे आ गया ए वर्ड होगा, नहीं तो वो सब स्ट्रिंग भी सर्च करता है। जैसे अगर तुम सिर्फ ए डालोगे W के बिना आई में तो ये हर जगह ए यूज कर लेगा, और अगर तुम सिर्फ W डालोगे तो वो जो ए वर्ड है सिर्फ वो ही रिटर्न करेगा। ये अरे समझ आया कि अपने एंड पे यूज करके देखो कमांड की नहीं है, ये बता दो। लाइक अपने एंड पे जरूर यूज करके देखो। गन्ने में चला के चल, ठीक है। ओके, सो अब हमारा ये हो गया, ग्रेप कमांड हो गई। अब दो ये बेसिक कमांड है। कई बार होता है कि तुम किसी के सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे यूजर का नाम क्या है तो तुम हु एम आई यूज कर सकते हो।
और अगर सपोज तुम्हें कोई फाइल के देखना है कि कोई फाइल कहाँ है, या फिर कोई बाइनरी फाइल कहाँ है बेसिकली, क्योंकि जब तुम्हारे इंस्टॉल होते हैं, तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, अभी दिखाएंगे इंस्टॉल कैसे करना है, तो उनको इंस्टॉल करके वो बाइनरी फाइल्स में स्टोर होती हैं। तो सपोज तुम वेयर इज यू, तुम्हें कोई फाइल अनइंस्टॉल नहीं हो रही है या फिर वो जानना है कि वो बाइनरी फाइल कहाँ है, तो उसके लिए वेयर इज यूज कर सकते हो। सो जैसे मेरे पास स्पॉटिफाई इंस्टॉल्ड है, तो मैं स्पॉटिफाई की बाइनरी फाइल देखनी है, तो ये आ गया कि स्पॉटिफाई इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है, तो तुम cd करके इस डायरेक्टरी पे जाके देख सकते हो स्पॉटिफाई इंस्टॉल्ड है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। एको एको बेसिकली सिग्नल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर तुम अगर रॉस वगैरह यूज़ करोगे उसमें ज़्यादा यूज़ होगा, बट मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सो जैसे तुमने कोई, वैसे बैश में यूज़ होता है एको। बैश इसकी जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमांड लिख रहे हैं उसे बैश बोलते हैं। सो जैसे कि एको, और मैं इसके आगे कोई स्ट्रिंग लिखूंगा XYZ, तो आउटपुट में XYZ आ जाएगा। और सपोज मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया x, क्योंकि x इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने ये वेरिएबल मतलब इस सेशन के लिए मैं जहाँ पे भी इस वेरिएबल को यूज करूँ, इस वेरिएबल को यूज करना होगा, तो मुझे x नहीं डॉलर साइन और इसके आगे x लिखना पड़ेगा। तो मतलब मैं इस x वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो जैसे तुमने कोई फाइल का बहुत लंबा नाम है और तुम उसको वेरिएबल में सेव कर सकते हो, तो अगर मुझे जैसे करना होगा x इको I have, तुम, तो ये I have 10 आ गया। तो बेसिकली तुम इस यूज कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे यूज होगा एको पाथ फाइंड करने में, क्योंकि क्या होता है कि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तुमने शायद ये विंडोज में भी देखा होगा कि जब भी तुम कोई फाइल इंस्टॉल करते हो या फिर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, उसका एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को पाथ में स्टोर करते हैं। तो एक ये डॉलर पाथ करके ये तुम्हें काफी यूज आएगा बाद में। ये मतलब जो जो भी मेरे इंस्टॉल्ड हैं उनका पाथ बता रहा है कि ये एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है और नोड जेएस वगैरह, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। C++ हो गया। अब पैकेजेस इन लिनक्स सिस्टम। तो बेसिकली तुम्हें कई बार क्या होता है कि लिंक मिलती हैं, उनको wget से तुम डाउनलोड कर सकते हो। मैं किसका दिखाऊं तुम्हें? पैकेजेस, बेसिकली पैकेजेस क्या होते हैं कि लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको नए करने हैं तो क्या कहते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए पैकेजेस का काफ़ी अच्छा यूज होता है। और डिपेंड करता है लाइक जैसे जो लिनक्स का होता है वो पैकेजेस पे डिपेंड करता है जो हम सॉफ्टवेयर की उससे रिपॉजिटरी से मेंटेन करते हैं। अब जो wget कमांड है उससे जो लिंक टू डेव फाइल है, ये बेसिकली जैसे अगर मान लो तुमने कोई इमेज ही है ना, wget फाइल के साथ तुम कोई लिंक अटैच कर दोगे, वो वाली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो पैकेजेस के साथ जब ये पैकेज का लिंक अटैच कर दोगे जो से साइट का, तो यहाँ से एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। गन्नू में एक बार करके भी दिखा दूंगा। मैं दिखा देता हूँ। क्रोमियम करके एक तुम्हें पता है कि जो क्रोम का ओपन सोर्स वर्जन है, उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं इंस्टॉल करने की। सो ये उसकी ये है। तो ओके, सो wget, और ये इसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। ये शायद लिंक पुराना हो गया है। ऑलराइट, सो एक बार ये दूसरा कर लेता हूँ। मैं क्रोम इंस्टॉल करके दिखा रहा, वैसे क्रोम इंस्टॉल्ड है, मैं वही यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी एक बार दिखाने के लिए मैं दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ।
तो हाँ, ये अब क्रोम का ये जो .deb पैकेज है वो डाउनलोड हो रहा है। ये इसका .deb वाला पैकेज है। अब इसको इंस्टॉल करने के अलग अलग वेज हैं। एक तो ये है कि ये /Twiclub में इंस्टॉल हुआ है, तो तुम ls में जाओ और देख लो, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लो या फिर जी लिख देना और हाँ, टैप एक करके आ बार जाए। यार अब बता दो कि wget कमांड तुम लोगों ने यूज करी कि नहीं, और इसका जो लिंक है ना चैट विंडो में पेस्ट कर दे। हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ यार, एक बार चैट विंडो में बता दो, लाइक हमें पता चले अभी कहाँ पे हो तुम लोग। बाकी भी बता दो एक बार कि इसको कर लिया तुम लोगों ने एक बार, जब भी जिस प्रोसेस पे हैं अभी हम लोग उतना कर लिया। चल गन्ने में आगे चल, लाइक ls करके तुम्हें ये क्रोम का वो दिख रहा है ना। गन्ने में आगे चल ले। गन्ने में। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तो सीधा कई, क्योंकि जैसे ये क्रोम का पैकेज है, ये एग्जीक्यूटेबल ही होती है इसकी परमिशन। तुमने पढ़ा होगा फाइल सिस्टम में कि 2-3 टाइप्स की परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। तो इसी जो तुमने डाउनलोड किया है उसकी जनरली एग्जीक्यूटेबल होती है। फिर भी एक बार हम इसको, क्योंकि अभी श्योर नहीं है, तो एक बार इसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। उसकी कमांड है chmod, मतलब हम इसका मॉड चेंज कर रहे हैं। चेंज मॉड बेसिकली इसका वो होगा +x मतलब एग्जीक्यूटेबल बना रहे हैं इसे, और Ctrl+Shift+V, और ये एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब तुम ls करोगे तो इसकी ग्रीन होगी। जो हमने देखना, तुम याद करो, हमने जो ASD फाइल का आउटपुट लिया था C++ को कंपाइल करके, वो भी ग्रीन था। सो हमने इसको एग्जीक्यूटेबल बना लिया, मतलब सक्सेसफुली। अब हम इसको एक dpkg करके होता है हमारे पास। लाइक ch मोड जो है उसके आगे और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, बट लाइक मैं कहूँगा तुम लोग ch मोड कमांड को एक बार खुद भी एक्सप्लोर करना, ठीक है। हाँ। तो अब हम डी पैकेज, बेसिकली जैसे हमारे इंस्टॉलर होता है exe इंस्टॉलर, वैसे इसमें ये इंस्टॉलर होता है dpkg, जो डेब फाइल्स को इंस्टॉल करता है। तो ये इंस्टॉल्ड आता है प्री इंस्टॉल्ड। इसका ये आई है इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, और इसमें हम ये नाम पेस्ट कर देते हैं। और हाँ सॉरी, इसके आगे तुम्हारा, अब जैसे मैं ये इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, दो। बट ये नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी फाइल इंस्टॉल करनी होती है तो उसकी बाइनरीज उसमें जाती हैं, ये तुम्हारे गूगल वो तुम्हारे रूट में। तो sudo करके अब ये कमांड तुम रन करोगे तो तुम्हारी रन हो जाएगी, बट मैं ये नहीं करूंगा अभी रन, क्योंकि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ और उसको री इंस्टॉल करने से शायद मेरा क्रोम क्रैश ना हो जाए, इसलिए। ऑलराइट। मतलब बाकी मेरे को लगता है उनके पास भी, सबके पास क्रोम तो होगा ही, तो ठीक है हाँ कर लो। बट लाइक इतना देख लेना कि जब तुम्हें कोई पैकेज ऐसे इंस्टॉल करना है तो sudo कमांड के साथ करना, हाँ। ठीक है। ओके, सो इसको अब हम करते हैं एग्जिट। कोई भी कमांड नहीं रन करनी है, नेक्स्ट लाइन पे आना तो Ctrl+C। हाँ मतलब जैसे कोई कमांड करंट रन हो रही है ना, बट उसको ब्रेक करना है तो कमांड सी कंट्रोल सी यूज करना है, सॉरी कमांड ओके। सी। वैसे इसका मैन डीपीकेजी की भी तुम बता सकते हो, वो देख लेना और क्या क्या यूजेस होते हैं इसके। राइट। अब होते हैं पैकेज मैनेजर्स। बेसिकली लिनक्स ने तुम्हारा काम सिंपल बना दिया कि तुम्हें हर बार हर चीज की लिंक ना ढूंढनी पड़े। तो इसके लिए दो पैकेज मैनेजर्स हैं मेनली। पहले तो सिर्फ एक था एप्टीट्यूड, बट आजकल स्नैप काफी पॉपुलर हो गया। स्नैप की खासियत ये है कि इसमें जो पैकेजेस होते हैं ये सिक्योर वेरीफाइड होते हैं, इनकी हैश कीज मैच्ड होती हैं। एप्टीट्यूड में भी होते हैं वैसे, एप्ट है उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे तुम्हें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो तो एप्ट का लिए तो ये है कि पहले तो sudo यूज करो, फिर उसके बाद एप्ट या फिर एप्ट गेट, कोई भी, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं। एप्ट इंस्टॉल
और इसमें आगे पैकेज का नाम। अब जैसे कि मैं सपोज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्या इंस्टॉल करें, सपोज चलो मैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्रोमियम। अब ये पासवर्ड मांगेगा। ओके, सो ये इंस्टॉलेशन कैंडिडेट हैज बीन, ओके। सॉरी, मैंने इसमें पूरा लिखना था, क्रोमियम ब्राउजर लिखना था। अभी इंस्टॉल कर रहा है। तो बेसिकली इंस्टॉल कर देगा। अब मैं इसको बीच में रोक देता हूँ क्योंकि वरना काफी टाइम लग जाएगा। ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, इतने में एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। अब तुम्हें ये सेम स्नैप होता है, स्नैप में सूडो प्रिविलेजेस स्नैप में भी चाहिए होते हैं। तो अब सपोज मुझे सबलाइम इंस्टॉल करना है, तो मैं उसके लिए स्नैप यूज कर सकता हूँ। स्नैप। अभी तक सारे क्लियर है ना? अभी तक लाइक कोई डाउट तो नहीं है? लाइक सेम पेज पे है ना सारे? बता दो। राइट, सो हमारे को इसके लिए सूडो, जैसे उसमें सूडो ऐप था, इसमें सूडो स्नैप है। बस आगे लिखना है इंस्टॉल। अच्छा, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, इंस्टॉल। और आगे ये हमें जैसे सबलाइम टेक्स्ट करना है, सबलाइम टेक्स्ट। और ये हो गया। इसके आगे क्लासिक लिख देना, काफी सारे उसमें लिखा जाता है। तो अब ये हो रहा है डाउनलोड। ये तो ये भी इतने इंस्टॉल हो जाएगा, फिर दिखा देता हूँ मैं सबलाइम टेक्स्ट। बस तो हो ही गया। ऑलराइट, सो ये तुमने देख लिया। अब ये सिर्फ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या होता है कंपाइलिंग फ्रॉम सोर्स। इसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर्स जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं उन पे अवेलेबल नहीं होते, या फिर कई ऐसे डेवलपमेंट वाले डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इतने फेमस नहीं है, बट तुम्हें अपनी डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए। तो उनको क्या कर सकते हो, तुम उनका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए पहले तुम्हें ये apt-get install build essential डाउनलोड करने का रहेगा। बेसिकली ये सारे जितने भी टूल्स होते हैं तुम्हारे कंपाइल करने के लिए कोड, वो इंस्टॉल कर देता है। फिर उसके बाद जैसे हमारा तुम्हारा उसमें विंडोज में वो होता है, विनरार करके होता है, वो अनजिप करता है पैकेजेस को, वैसे ही इसमें टार करके होता है, उसकी ये कमांड्स होती हैं। तो इसमें एक्स जे वी एफ, इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। एक्स मतलब उसे अनजिप करेगा, जे मतलब इंटरेक्टिवली करेगा, वी मतलब वो दिखाएगा कि तुम्हें कौन कौन सी फाइल। अगर वी नहीं करोगे तो जैसे स्नैप में एक लाइन में हो रहा है सारा इंस्टॉल, और जैसे हमने ऐप यूज किया था तो इतना सब कुछ वो एक एक फाइल मुझे बता रहा था क्या क्या कर रहा है। तो वो इंस्टॉल हो गया और सबलाइम इंस्टॉल हो गया। तो मैं इसको, कहाँ गया, गन्ने में आ गया। एक बार अब चल एक बार इसके बारे में बता दे, फिर एक बस आगे सबका ना एक ओवरव्यू दे दे क्योंकि टाइम हो गया काफी। ओके, मैं ठीक ठीक है? है कर देता हूँ। और लाइक जो कमांड्स है ना, बाकी हम तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे। हाँ, तुम तुम इन वो सबको प्रैक्टिस खुद कर एक बार लेना। गूगल करके देखना और खुद प्रैक्टिस करके देखना, लाइक अपने वेरिएशंस खुद ट्राई करके देखना। ठीक है? ओके, सो टार बेसिकली अनजिप करने के लिए काम आता है। हर जो तुम्हारी सोर्स कोड की फाइल होगी उसके अंदर एक कॉन्फ़िगर करके फाइल होगी, उसमें लिखा होगा कि इस कोड को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हर कोड की डिपेंडेंसीज होती हैं कि उसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, उसको ये चाहिए, तो वो सारी एक साथ इंस्टॉल कर देता है। फिर मेक से तुम्हारा कंपाइल होता है, और मेक इंस्टॉल से तुम्हारी बाइनरी फाइल्स जो हैं वो तुम्हारे रूट बिन में जाके इंस्टॉल हो जाती हैं। सो ये प्रोसेस है। ये तुम्हारे अभी काम नहीं आएगा, तुम मतलब थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी सीख जाओगे, या फिर हो सकता है तुम्हारे कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे
जैसे मेरा ये हुआ था कि मैंने नया लैपटॉप लिया और उसमें ड्राइवर्स काम नहीं कर रहे थे ब्लूटूथ के। सो अब मैं इनको मेल तो कर नहीं सकता asus वालों को, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ विंडोज के लिए बनाया मेरे पीसी। तो ओपन सोर्स है, तो इसलिए मुझे खुद उसका सर्च करना पड़ा कि उसके ड्राइवर्स कौन सा बनाता है। फिर मैंने रियल टेक का सोर्स कोड डाउनलोड किया, फिर उसे कंपाइल किया, फिर उसे इंस्टॉल किया, तो फिर मेरे जाके ब्लूटूथ चला पीसी में। तो ऐसे करके तुम मतलब काफी जगह काम आ जाता है सोर्स कोड से इंस्टॉल करना। हाँ, अब यूजर्स एंड ग्रुप्स एक बार थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सूडो हो गया तुम्हारा रूट यूजर और सुपर यूजर। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सूडो तुम कैसे बनोगे। वैसे मैंने बता दिया था, पर फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। सूडो आई करके कमांड होती है और ये तुम्हारे रूट यूजर बन गए तुम। ऑलराइट, तो बेसिकली रूट इससे क्या होता है कि कोई भी कमांड होती है ना, उसका डिफॉल्ट तुम्हारे पास एक्सेस आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो। हाँ, बट कई बार मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि रूट बन के कोई फाइल्स डिलीट मत करना, क्योंकि कई बार कोई फाइल डिलीट कर दो या कोई डायरेक्टरी, और उससे तुम्हारा सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। सो अब क्या होता है कि रूट सुपर यूजर एक ही बात है। अलग अलग यूजर्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि लिनक्स इज अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। तो तुम काफी सारे यूजर्स बना सकते हो लिनक्स में। हर यूजर का यूजर आईडी या ग्रुप आईडी होता है, उन यूजर्स के ग्रुप बना सकते हो। फिर अगर तुम्हें जैसे सपोज किसी यूजर को, जब तुम काफी जैसे किसी लैब वगैरह में काम करोगे, तो उसमें क्या होगा, जनरली एक ही सिस्टम होगा मेन सर्वर, और तुम सबके कंप्यूटर्स उससे तुम कनेक्ट करोगे। तो तुम जैसे तुम्हारे पास रूट एक्सेस है और तुम्हें किसी को बनाना है रूट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर रूट प्रिविलेजेस देनी है, तो तुम उसको यूजर ऐड और उसका जैसे जो भी यूजर आईडी है उसका पासवर्ड रख सकते हो, और उसको रूट करके XYZ उसको रूट एक्सेस दे सकते हो XYZ को। ऐसे यूजर ऐड होगा इस कमांड से, और इसको यूजर मॉड यूज करके तुम उसे रूट एक्सेस दे सकते हो। सो अब ये फाइनल हो गया है, मतलब हमारी कमांड बेसिकली हमने ओवरव्यू से डिस्कस ओवरव्यू कर। दे दिया, लाइक आगे तुम लोगों को खुद करना है। अभी तक बताओ कि अभी तक कोई डाउट है? तो लाइक आई वुड लाइक आल्सो रिकमेंड कि जिन्होंने अभी लिनक्स नहीं इंस्टॉल करी वो एक बार लिनक्स लाइक आज रात में इंस्टॉल भी कर लो। ओके कल प्रियांशु, द डिफरेंस अच्छा। बिटवीन विंडोज टर्मिनल एंड लिनक्स टर्मिनल इज कि विंडोज में वैसे आजकल ऑप्शन आ गया है। विंडोज में तुम एक सब सिस्टम बना सकते हो WSL, और उससे तुम लिनक्स एक्सेस कर सकते हो। बट विंडोज की आई थिंक तुम कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हो, इट इज डिफरेंट। वो बना है डॉस के ऊपर, वो बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो पूरा अलग, मतलब वो यूनिक्स बेस्ड नहीं है जो मैक तुम्हारे। टर्मिनल है उसको तुम लोग यूज कर सकते हो। हाँ, जो Windows में। मैक का टर्मिनल है उसको तुम लिनक्स टर्मिनल, क्योंकि कमांड्स उसमें सेम होती हैं। हम्म। तो अगर तुम इसमें जाओ तो तुम्हें काफी यूट्यूब वगैरह पे अच्छी इनकी हिस्ट्रीज वगैरह पता लग जाएंगी कि माइक्रोसॉफ्ट और यूनिक्स सिस्टम क्यों बना था, उसकी क्या नीड थी, ये सब तुम रिसर्च कर सकते हो। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रिसर्च अबाउट। और गिट कमांड, गिट इज अ टूल यार, मतलब गिट गिट का ऐसे कोई अलग कमांड नहीं होता है। गिट को तुम लिनक्स पे भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैं इसमें गिट यूज कर सकता हूँ अपने टर्मिनल पे। हाउ वी ऑल स्टार्टेड, भाई हमने तुम्हारे जैसे ही स्टार्ट किया था, हम भी पी क्लब हुए सेशंस वगैरह लगाते थे। हाँ, मैं वीडियो हाँ, का वीडियो लिंक शेयर कर लेना। हाँ। शेयर कर देंगे। और तुम लाइक UIT पी क्लब वाले ग्रुप पे हो ना, तो उस पे सारे शेयर कर नहीं, देंगे DSC में भी शेयर कर देंगे और पी क्लब वाले में भी शेयर कर देंगे। हाँ, उसके टेलीग्राम पे कर देंगे। हम्म। तो मतलब DSC के टेलीग्राम और पी क्लब के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो ना। ओके। ओके, ठीक है बस, है ना? ओके। अर्चित एंड रेचल, यू कैन टेक इट फ्रॉम। Okay, so
आई थिंक ओवरलोड हुआ है बहुत आज। सो हाँ, ओके, so तो ये हाँ बोल पिछलू। हाँ, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर तुम लोग को है अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह तो हम में से किसी को भी पूछ सकते हो। तुम डीएससी के टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट्स पूछ सकते हो इफ यू वुड लाइक दैट, वरना पी क्लब के ग्रुप में पूछ सकते हो। एंड कल से हम लोग शुरू करेंगे गिटहब वाला सेशन। सो आज की जो थोड़ी सी कमांड्स हैं, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन रिवाइज देम ऑल। एंड वी होप कि आप लोग हमें कल भी ज्वाइन करो, क्योंकि थोड़ा सा लिंक सेशन रहने वाला है। एंड ऑल्सो गिट एंड गिटहब आर लाइक super useful things that you need to know as a developer. And उसके बाद हमारा जो last session होगा, that's going to be about open source and how you can contribute and all. So for contributing to open source, GitHub repositories have a very important role. So yeah, जितने भी 15-20 लोग बचे हैं end तक, I hope कि तुम लोग हमें कल join करो। बाकी more details will be shared in both the groups, P Club as well as Telegram. So that's all from my end. If you want to say anything, guys, to wrap it up, then you can go ahead. Yeah, I think it is fine now. Like I would like again say that कि Linux installation try करना, और like कोई डाउट आता है तो P Club एंड DSC के ग्रुप में पूछ लेना, कोई ना कोई जरूर हेल्प कर देगा। ठीक है, और वीडियो अभी शेयर कर देंगे हम, अभी जस्ट जल्दी शेयर कर देंगे जो इंस्टॉलेशन की थी। बाकी कल सेशन जरूर ज्वाइन करना, लाइक कल काफी इन्फॉर्मेटिव होगा गिटहब पे। क्योंकि आगे गिटहब काफी काम आता है, तुम्हें पता चलेगा। एंड GSOC अगर किसी को करना है तो गिटहब के बिना नहीं होगा। कोई भी ओपन सोर्स इवेंट करना है, गिटहब इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल लगाना जरूर। या ओके, सो खत्म करें। ठीक है, और कॉल करूँ मैं। ओके ओके Hello, okay, bye everyone, you can exit.